write down the statement about the two quantities, that if something is directly proportional to something, you write it down in English. But sometimes examiner may write in a mathematical language, and this is how examiner is going to write. This is the sign of proportionality. This is the sign of proportionality. So अगर examiner लिखता है if A and this sign and then B, then you are going to read it as A is directly proportional to B. ठीक हो गया? अच्छा, इसकी इक्वेशन आपने हमेशा ऐसे बनानी है, A is equals to K times B. In short, in place of this proportionality, what are you going to write it down? This is the rule. Whenever you remove the proportionality sign, you replace it with two things. First, equal, then a constant K. तो इसलिए इसका नाम मैंने K मेथड. K मेथड कोई पक्का नाम नहीं, यूनिवर्सल. गूगल पे कर सर्च करेंगे, हो सकता है कुछ और निकल है. मैं इसको K मेथड बोलता हूँ. ठीक हो गया? So if A is directly proportional to B, then A is equals to KB. This is going to be your law connecting A and B. और लॉ के अलावा आप इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन कनेक्टिंग A and B. इसको आप रिलेशन भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन A and B, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है? अच्छा, this is when something is directly proportional. Another case when something will be inversely proportional. So examiners will write it down. A is inversely proportional to B. उसको अगर वो मैथमेटिकल नोटेशन में लिखेगा तो साइन वही रहेगा प्रोपोर्शनैलिटी का, सिर्फ जो सामने B है वो रेसिप्रोकल में आएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 1/B. ठीक हो गया? So this sign is not associated with directly or inversely. This is just the sign of proportionality which defines that they are connected. Now, in what manner they are connected, that depends on how you write it down. ठीक हो गया? If you write it down as it is, it means directly. If you write the reciprocal of it, means it is inversely. ठीक है? अब इसकी इक्वेशन आपने हमेशा कैसे बनानी है? A is equals to K over B. आपने हमेशा इस टाइप से आपने, this is how you're going to make the equation. Now, इनके alternatives, वैसे तो दो possibilities मैंने लिख दी हैं. One of the ways, A is directly proportional to B. This is examiner going to write it down in English in words. If examiner wants to use a mathematical notation, तो ये use करें. Now, what are other alternatives that examiner may use? Inversely में तो इतना नहीं use होता, मसला इसमें आता है. Examiner कहेगा A varies to B. Just this statement. A varies with B. अब वो किसका क्वेश्चन है? Like there varies मतलब A is changing with respect to B. Now, डायरेक्ट मैनर में और इनवर्स मैनर में ये नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो जब सिर्फ वेरीज की टर्म यूज करेगा देन इट इज अंडरस्टूड कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहां तक क्लियर है? इफ द एग्जामिनर से ए वेरीज के साथ अगर डायरेक्टली लिखना है तो वो ए वेरीज डायरेक्टली टू बी. ठीक हो गया? इधर भी वेरीज की टर्म यूज कर सकता है, बट इनवर्सली का वर्ड भी यहाँ पे जरूर मेंशन करेगा. तो ये तो आ गया हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द केस. क्लियर? तो इस केस का क्वेश्चन है दिस इज हाउ योर रिलेशन शुड लुक लाइक. अगर इस केस का क्वेश्चन है दिस इज हाउ योर रिलेशन शुड लुक लाइक. नेक्स्ट, स्टेप 1. How would you solve the questions related to it? The first step is always to write the relation. Write the relation after reading the statement of the question. Step 2, find K using complete set of information.
Complete set of information, as in the other day I gave you an example of the library. A complete set of information was for 1 day, this much is the fine. For the currency question, for $1, this is how many pounds you're going to get. That's a complete pair of information. So you need one complete pair of information in order to find out or work out the value of k. Once you have worked out the value of k, then you jump to step 3. And step 3 is to write the relation again. Write the relation again with value of k. Like the first time when you will write the relation, there will be k, but it as an unknown quantity. In step 3, when you will write the same relation, but this time you will plug in the value of k, which you will be finding it out in step 2. Step 4, find out the unknown quantity, whatever is the question. Find the unknown quantity. Find the unknown quantity. Now, why is it important to know these steps? सीधा सीधा questions तो तकरीबन सबका हो जाता है. Sometimes we get questions which are pretty twisted. They look very scary. But वो उनका अब अगर आपको ये steps clear होंगे तो वो बड़ा आसान होगा. ठीक हो गया? All right. Now let's see how exam questions looks like. Steps लिखिए. Just give me a minute. मैं इसकी worksheet open कर लेता हूँ. पानी डालना बच्चे. All right. So let's say ये एक वर्कशीट है, इसको ओपन करते हैं. ओके. राइट. अब इन क्वेश्चन में सबसे पहला बढ़िया पॉइंट क्या आता है? स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आसान लगता है, वो सिर्फ ये पढ़ता है, ये पढ़ता है डायरेक्ट आपके पास, और ये यहाँ से हल्का सा ये पढ़ लिया तो फौरन से इक्वेशन बना लेगा. What's the problem here? What mistake have I done? I forgot the positive square root of x. Now the two quantities which are being discussed here are not y and x. The two quantities are y, positive square root of x. The examiner could have very easily wrote this. Okay, but the examiner आपको pitfalls maximum देगा so that you trip. But you should know, you should be aware of all the pitfalls. ठीक है? तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है. So इसका रिलेशन अब क्योंकि डायरेक्ट है, y is equals to k times root of x. K times root of x. Step 1 done. Relation लिख लिया. Step 2, find out the value of k. Step 2 क्या था? By using a complete set of information. ऐसे ही? Okay, now the complete set of information is this one. That when the value of x is 9, y is 12. This is a complete pair of, like, this is one pair, and you can tell this by this word when. When the value of x is 9, comma, y is 12. So this is one pair. So we are going to use this pair of information. Y is 12.
and x is 9. I've plugged in those two values and I can easily find out the value of k. 12 over what? 3. So k is equals to 4. Once I have worked out the value, what I'm going to do next? What was step 3? Write the relation in with the value of k. Write down the relation again with the value of k. So I have written down the same relation again, but this time I've used the value of k, which I've worked out here in red. This was step 3. Now step 4 is to find out the unknown pair. Now the unknown quantity is y. We are supposed to find out y when the value of x is 1 by 4. So y equals 4 times 1 over 4. Y is equals to 4 times root of 1 by 4 is 1 by 2, and the value of y is 2. Question is pretty simple and easy. Now, sometimes I'm going to give you I'm going to show you how you can get the very same question in different manners. अब कभी-कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस क्वेश्चन को ब्रेक करता है, आपसे इसके दो पार्ट्स बना देगा. वो आपसे पूछेगा जी, write down the law connecting y and the root of x. Write down the relation connecting y and the root of x. ठीक हो क्या? वो कुछ भी इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर देगा. उस केस में आपने यहां तक करना है. उस केस में आपने यहां तक करना है. ठीक हो गया? सेकंड पार्ट में वो आपसे ये चीज पूछेगा. ठीक है? सेम वर्क फ्लो को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. इधर 3 मार्क्स का, उधर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा, या हो सकता है 3 का ही रहे, 1 मार्क फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर दिस. ओके, गॉट इट? So this is the workflow which you need to stick to. आसान है, मुश्किल है? Right. I would like you guys to do this question. V is directly proportional to the cube of r plus 1. When r is equals to 1, V is 24. When r is equals to 1, V is 24. Work out the value of V when r is equals to 2. Huh?
हाँ जी, हो गया? टेक योर टाइम। के क्या है बेटा आपका? के 12 आ रहा है, आपका के 1/3 आ रहा है। कैसे? ये 24 है, के फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या है, अभी अलजेब्रा पढ़ के आए हैं बच्चे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 नीचे है, ऊपर होगा, ये नीचे होगा ना, 8 24/8 बनता है। 24/, 12 कैसे निकाला है आपने? 1 प्लस, क्वेश्चन देखें, अभी मैंने बताया था मडीएस्ट पॉइंट, और उसी पिटफॉल में आप गिर गए हैं। V is directly proportional to the cube of r plus 1. To the cube of r plus 1, not just r plus 1. Yes, online students, anybody done? Yes, sir. Great. Okay, so V is k times r plus 1 whole cubed. That's the relation. Now I need to find out the value of k. In order to do that, I'm going to use the complete pair of information. V is 24, r is 1. Okay, so k is equals to 24 over 2 cube is 8, and k is 3. All right, next. So I have the value of k, I will write down the relation again. 3 times r plus 1 whole cubed. Now work out the value of v when r is equals to 2. V is equals to 3 into 2 plus 1 whole cube. GC O level students कैलकुलेटर के बगैर कोशिश करें, ये क्या हो जाएगा, ये 3 पावर 3 और ये 3 है तो 3 पावर 4 आ जाएगा, विच शुड बी 81. ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन. हाँ जी, आयशा बेटी, डिड यू गेट द सेम आंसर? Yes. महरमा? Yes, sir. इजिन? Yes. मोहम्मद? Yes, sir. हरम? Yes, sir. मावीन? मरियम? Yes, sir. और अब्दुल रहमान? चलिए बेटा, ये करें क्वेश्चन, स्टेप्स देख लीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, रिलेशन को जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है।
ओके ओके बच्चे को चेक करते हैं इनवर्सली inverse relation है so y is equals to k over x plus 2 whole square पहला स्टेप ये किया बेटा अच्छा तो नेक्स्ट k की वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीट पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे y is 2 x is 1 1 plus 2 is 3 3 square is 9 9 times 2 is 18 I'll write the relation again अच्छा इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं क्योंकि इसमें पॉसिबल होता है आसान होता है जब आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है कि हम डायरेक्ट कर लें आई से नो डायरेक्ट कभी भी मत करें ठीक है अगेन क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता मार्क्स अच्छे लेने का जो बेसिक फर्स्ट रूल है वो यही है कि कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर इन अ वेरी गुड मैनर ठीक हो गया अच्छा सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज ओह फाइंड y in terms of x दैट्स इट इसमें आपको यही करना था ठीक हो गया मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है वो यही हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट देयर इज नो एनी अननोन क्वांटिटी गिवन ठीक है ओके इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में और कर देता हूं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो ये यूनिवर्सली का है इसमें हमने एक अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी p is inversely है so k over q plus 4 square to the square of q plus 4 so complete pair of information p is 2 k q is 2 as well so 2 plus 4 is 6 6 square is 36 36 टाइम 2 कितना होता है 72 ये कितना आ गया बेटा 36 times 2 72 ही होता है next write down the relation p is equals to 72 over q plus 4 whole square find the value of p when q is minus 2 so p is equals to 72 minus 2 plus 4 is 2 2 square 4 72 divided by 4 13 13 yeah 18 4 yes 18 ठीक है सही हो ये आपका आंसर है तो हम चलते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं इसका ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आता है इसका ट्रिकी क्वेश्चन आएगा A is directly proportional to square of B. What happens to A when B is doubled? बताएं जी कौन इसका आंसर बताएगा एनीवन सोचें बताएं जो जो दिमाग में आता जाता है बताते जाएं So A will be 4 times B. A will be 4 times of B because it's square. okay
ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा आंसर ठीक है, थोड़ा सा गलत है। पेपर पे करें शायद थोड़ा आइडिया हो जाए। आयशा बेटे, कैन यू टेल हाउ टू गो अबाउट इट? No, sir, I'm confused. Just give me an because in a direct relation, if A is if one of the quantity is increasing, the other will increase as well. Now B is increased 2 times. What will happen to A? That's the question. It will also increase 2 times. That's what a common sense says. But if you do it mathematically, you may get a different answer. Right? Shabash. That's the first instinct के double होगा. Very good. First instinct तो आप पहुंचे. Into 8. Into 8. महरमा कह रही है into 8. महरमा नहीं बोला है? किसने बोला? ये महरमा की आवाज थी. जी. Okay. Into 8. Okay. मोहम्मद. मोहम्मद Yes, sir. बताएं जी. Sir, I think it will be 8, sir. 8. मरियम. I think it will be 4 times of A. 4 times of A. 4 हरम. times of sorry. अच्छा 4 times of B. Okay. हरम. नहीं. चलें जी, इस क्वेश्चन को करते हैं. इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन आते हैं कि बी को 4 टाइम्स कर दिया, ए बताएं क्या होगा. बी को हाफ कर दिया, बताएं क्या होगा. ये स्क्वायर ऑफ बी एस की जगह वो क्यूब ऑफ बी लगा देगा. कुछ भी इस तरीके से वो चेंजेस लेके आ सकता है. ठीक हो गया. अब इस क्वेश्चन का फ्लो क्या बनता है देखें जरा. मैंने आपको पीछे कुछ स्टेप्स बताए थे, वी विल फॉलो दोस जहां तक हम कर सकते हुए. बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन जनरल, वी आर नॉट टॉकिंग इन नंबर्स. So we are talking in general. So variations में क्या होता है? When you are given a complete set of information, that's that one situation. That value of x is 3 when y is 2. That's one situation, one particular situation. When the value of x will change, y will be changed as well. That will be some other situation. So we are dealing. तो वहां पे वो पुरानी सिचुएशन खत्म हो जाएगी. ठीक हो गया. सो यहाँ पे सिचुएशंस में हम चलेंगे. आप यूं कह लें. ठीक हो गया. हम डिफरेंट इवेंट्स बना लेते हैं इसके, डिफरेंट सिचुएशंस बना लेते हैं. So one of the situation A1 मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इसके लिख लिया है, so that we can say that this we are talking about one of the situations here. So A1 is equals to K times the square of B1. That's what is given in the question, isn't it? उसने 1 और 1 की सबस्क्रिप्ट यूज नहीं की. हम इसलिए यूज कर रहे हैं हम अपनी आसानी के लिए, that we are dealing with one situation. Okay. Now, what is changing here in the question? What? No. What is changed by the examiner here in the question? No, power is not changing. Still square of b. That's the relation defined. No. What happens to a? He wants to know what happens to a. He's not changing a. A will eventually change, but he is not changing it. He's changing what? B. B को उसने change कर दिया. So B is going to go in another situation, and we will see what happens to A, which was in first situation. Okay. So A1 stays as it is. K times 2 times of, sorry, A2, that's another situation of A. We need to know what happens to A when the B of the first situation is doubled. When the B of the first situation is doubled. यही relation बनता है. Equation ठीक लिखिए. जो पहली situation का B है, इसको मैंने double कर दिया. B1 times 2. इसको मैंने double कर दिया. And I want to know
how this impacts on the new A. ठीक हो गया? So let's see. A2 is equals to K times 4B1. Can I write it down like this? Sorry, B1 squared. 2 square is 4 and B1 square is B1 square. All I need to know is, अब यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है. K times B1 squared. Now what was K times B1 squared? What was K times B1 squared? पढ़े इसको एक और से देखें यहाँ पे क्या है. A, just A1. So A2 is 4 times A1. K times B1 squared is equals to A1. So when B is doubled, what is happening to A in the first situation? 4 times हो रहा है. मरियम ने सही आंसर दिया था, फिर वो परेशान हुई है. मरियम समझ आया? Yes. क्लियर हुआ? इसी तरीके से स्क्वायर के केस में अगर वो हाफ कर देता है, स्क्वायर के केस में वो हाफ कर देता है, तो वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. वो कैसे करेंगे? A1 is equals to K times B1 square. क्वेश्चन को पढ़ के पहला स्टेटमेंट यही बनता है. Now we need to know what happens to A, the new A, if the old B is halved. So A2 is equals to K times B1 squared over 4. So A2, A1 B square किसके इक्वल था? A1 के is equals to A1 over 4. तो वो 4 times less हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा of the previous one. The new A2 will be 1/4 of the A1. Clear है? लिखें. This is when B is halved. This is the solution to the question I have written here. ये मैंने वैसे जुबानी बताया था कि अगर B को हाफ करेंगे तो क्या होगा. इसको लिखना है, लिखें, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. इस दिन बेटा समझ में आया? Yes. अब एक सिंपल क्वेश्चन है. F is equals to ma means force is directly proportional to acceleration. उसमें k इसलिए नहीं है, ये तो हम मैथ पढ़ रहे हैं ना.
हम कोई भी जनरल कांस्टेंट ले लेते हैं, तो व्हेन F इज इक्वल्स टू ma, उसमें क्या कांस्टेंट आ जाता है? मास। मास कांस्टेंट आ जाता है। यही जो न्यूटन का लॉ है, जो आप लोगों में से फिजिक्स पढ़ते हैं वो पता होगा कि न्यूटन का लॉ ये है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। कुछ बुक्स में साथ कॉमा के बाद लिखा होता है फॉर अ कांस्टेंट, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कांस्टेंट मास, तो वो यही वेरिएशंस ही बनती है। अब F इज इक्वल टू ma में फोर्स को जब मैं डबल करूंगा तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क आएगा? डबल, क्योंकि उसमें कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? समझ में आया? स्क्वायर हो तो मैं 3 टाइम्स कर दूं एक क्वांटिटी को, दूसरी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्क्वायर होगा, एक क्वांटिटी पे स्क्वायर है। दूसरी क्या हो जाएगी? इसी क्वेश्चन को ले लें, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b, b को 3 टाइम्स इंक्रीज किया मैंने, नॉट 6। सोचें, प्रोसेस को फॉलो करें। नाइन टाइम्स क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल जाए तो मैं वो भी करवाता हूँ। तब तक होमवर्क लिखें। क्वेश्चन ना मिला तो वो भी मैं होमवर्क में ही सेंड करूंगा। ए बी सी एंड डी में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें से कौन सा ग्राफ विद रीजन, विद रीजन आपने बताना है। इस पे थोड़ी सर्च करनी है आपने। Sir, A. व्हाट इज द रीजन? So because if one value is 0, the other can't be higher than that. वेरी गुड, वेरी स्मार्ट आंसर, शाबाश। ए, क्योंकि अगर एक जीरो है तो दूसरी डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होगी तो उसमें भी क्या देना है? जीरो ही देना है। ठीक है, ए बी और सी में से इसका कौन सा ग्राफ होगा यूनिवर्सली का? ठीक है, ये आपने देखना है विद रीजंस। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जिसकी भी 1 मिनट, आप ये देखें इसको, करे वो क्वेश्चन मिल जाए।
Sir, B. बी वजह सर अगर पहली वैल्यू अगर हाई है तो दूसरी को लो होना चाहिए। हाँ अच्छा आंसर है। थोड़ा सा और देखें इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक वो जीसीई का क्वेश्चन था जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा फिर। उससे आपका वेरिएशन अच्छा खासा सीधा हो जाता है। अगर वो ना भी आए ना, समझ में आ जाए एक दफा वो क्वेश्चन, तो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी मिल नहीं रहा लास्ट अटेम्प्ट। Yes, I found it. GCE का ही था। Okay. Question is, values of P are 27 and 33. Values of Q 9 and R. P is directly proportional to Q. Find R. This is the first part. Second part. Second part, values of X. They are 2, 10, 25, 1 for the values of Y. Y is inversely Y is inversely proportional to dash. Third part. Third part is M is directly proportional to L cubed. How many times larger is M when L is multiplied
बाय 4। देखें जी इस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है P की वैल्यू दी हुई है 27 और 33, Q की वैल्यू दी हुई है 9 और फिर R। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वो उसने बता दिया, फाइंड R। पहला क्वेश्चन आसान है, ये सेम क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट फॉर्म में देता है, यहाँ टेबल की फॉर्म में दे दिया, कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 27 और 9। ठीक है, एक क्वांटिटी अननोन है, वो R है, जो कि टेक्निकली Q ही है। ठीक है, बजाय इसके उसको कहने के फाइंड Q व्हेन P इज 33, उसने बोला है फाइंड R। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हमने आज शुरू में किए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। है दोनों ये 1 मार्क का क्वेश्चन ये है और 1 मार्क का क्वेश्चन ये है। और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, 3 पार्ट्स थे उस क्वेश्चन के। तीनों हो गए। पहले का आंसर शेयर करें। R इक्वल्स 11। जी बेटे आप बताएं, कर रहे हैं? जीसी स्टूडेंट्स, आपने एक क्वेश्चन देखा हुआ है पहले? नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर किसी से हो गया हो? So I'm done. डन, गुड। Yes. फर्स्ट का आंसर क्या है? 11. गुड। सेकंड का? X
x। ओके, थर्ड का 64. 64। आपका सेकंड का क्या आया था बेटे? x आया, x आ रहा। ओके, देखिए जी, ये तो आपके पास p is directly proportional, so p is k times q. p equals to k times q. When p is 27, q is 9, तो k 3 आ जाता है आपके पास, यही आता है, कांस्टेंट k 3 आ रहा है। देन रिलेशन लिखेंगे p is equals to 3 times q, और q आपने फाइंड आउट करना है, which is r basically when p is 9. So 9 is equals to 3 times r. r is equals to 3 आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास 3 क्यों आ रहा है? क्या गड़बड़ हुई है? आपसे हुई है, मेरे से हुई है? ओ अच्छा, वो 33 है, सॉरी, ये मैंने 9 लिखी है इसकी वैल्यू। We need to find out the value of r when p is 33. तो 33 over 3 11 ही आता है, मेरे से हुई थी गड़बड़। r equals to 11, ठीक हो गया। चलिए इस पे बाद में आते हैं, ये वाला देखें जरा, ये तो अभी हमने किया है। सो m1 is equals to k times l1 cubed. m1 is equals to k times 4l1 cubed. So m1 equals to 64 times kl1 cubed. kl1 cubed is, oh sorry, this is m2. m2 is 64 times k m1. 64 times जो है वो, how many times larger is m? So 64 times. ठीक हो गया। इस पे आते हैं जी, इस पे y is inversely proportional रहा है। एक बात तो हमें पता चल गया कि कौन सा रिलेशन चल रहा था, इनवर्स। अभी तरह रिलेशन बनाए जो दोनों पे परफेक्ट बैठे। y is equals to k over x। अगर आप एक बात मुझे बताएं, कांस्टेंट चेंज होता है? कांस्टेंट चेंज होता है? कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। इधर जो वेरिएशंस के टॉपिक में जो जनरल कांस्टेंट है, जैसे पर डे फाइन 2 रुपीज है, सो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, तो वो 2 रुपीज ही रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास फिक्स है, सो नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाई, जितनी मर्जी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, उसका ऑब्जेक्ट का मास इन एवरी सिचुएशन सेम रहेगा, so that constant never changes. So this constant, we should get exactly same constant from both these two informations. So y is 25 when x is 2. यहां से क्या आ रहा है बेटा? k की वैल्यू क्या आती है? 25 टाइम्स 2 50। इधर से आ जाए, y is 10 when x is 1। यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है? 10। तो इसका मतलब है x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ये। इसका मतलब है ये x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, लेकिन सिर्फ x के नहीं है। अब मुझे बताएं x में मैं क्या चेंजेस लेके आऊं कि कांस्टेंट सेम रहे? ये आपके सामने लिखा हुआ है। इन दोनों में कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहे। कांस्टेंट नीड्स टू बी सेम। टू से तो ये 220 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स 25 100 हो जाएगा, है मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो वही 2, ये नीचे 2 आ जाएगा, 2x आप कह रहे हैं इसको। तो 2 1 2, 2 10 20, 2 2 4, 4 times 25 is 100। अगेन k is different। बताएं जी,
Isn't Online it supposed students, to be 1 is equals to k over 10? 1, yeah, Because जी 10 जी is जी not जी x. जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. 1 is equals to k over 10. तो अब 2 से मल्टीप्लाई करें 20, सेम आ रहा है. 1 is equals to k over 10 और 25 is equals to k over 2. इन दो इक्वेशंस में हमें इधर डिनोमिनेटर में कुछ करना है, मतलब we need to do something about x कि k जो है वो सेम है, तब रिलेशन समझ में आएगा. X square. 10 स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर 100. 100 बनता है 100. 2 स्क्वायर 4 times 25 आ गया कांस्टेंट सेम, तो k is inversely proportional to x, सॉरी y is inversely proportional to x squared. समझ में आया? ठीक है, ये मुश्किल सवाल थे वेरिएशंस के. अगर ये समझ में आ गए तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया. ये इसकी वर्कशीट्स में आज इंशाल्लाह भेज दूंगा. कल इंशाल्लाह हमने रेसिपी रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, जो पिछले 2-3 ईयर से रेगुलर बेसिस पे एग्जामिनर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में दे रहा है और वो काफी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, चलिए, दैट्स इट. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Sir, you didn't upload the Mars scheme of simultaneous equations. साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मार्किंग स्कीम नहीं अपलोड की. चले मैं देख लेता हूँ. ठीक हो गया? Okay. चलो, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. That's it.